Now I will call upon Bhavna Madam to guide us something about the taxation, because when we invest in Indian markets, we all know how we have to pay taxes over our investments. What is the implication of the long-term capital gain or short-term capital gain over our investments? Uh, I would invite Bhavna to talk about it. Thanks, Abhinav, for giving me this opportunity. Hello, everyone. Welcome all of you on this webinar. I hope you people have received a lot of information on global stocks by Abhinavji. Now, let us talk about some of the regulations relating to remittance of foreign exchange and taxability of capital gain and dividend from global stocks. Under the liberalized remittance scheme, a resident individual can make foreign transfer up to a limit of $250,000 during a financial year, including travel, education, investment, hospitalization, or any other remittance. Now let us take an example. Suppose you have spent $50,000 for travel and $50,000 on education of any of your child. So that means you have already spent $1 lakh in foreign exchange. So the amount available to you to invest in global stocks is $1,50,000 for a financial year. Secondly, payment of more than 7 lakh rupees is applicable for a deduction of TCS at 5%. Since 1st October 2020, the banks which are facilitating the foreign exchange transfer will collect a tax of 5% when you transfer funds internationally under the LRS scheme on the value of the fund transfer over and above rupees 7 lakhs during the financial year. Let us now understand this with the help of example. You have instructed your bank to transfer a fund of 15 lakh for foreign remittance for any purpose. The bank will transfer the 7 lakh rupees without charging any TCS. But above that amount, that is 8 lakh rupees, the bank will charge a 5% TCS. Now let us discuss about the taxes. The taxes contains two parts. One is capital gain and another is income from dividend. Further, capital gain has two parts. One is long-term capital gain and the other one is short-term capital gain. If you have kept the shares purchased for more than 24 months, then the capital gain will be termed as long-term capital gain, which will be taxed at a flat rate of 20% after giving the benefit of indexation. If you have kept the shares for less than 24 months, say for 1 day, 2 day or 1 month, it is the gain on sale of those shares will be termed as short-term capital gain, which will be taxed as per the slab rates. That means the income from the short-term capital gain will be added to in your gross total income and will be taxed at the normal slab rates. The other part of the income from global stock is dividends. The dividend is taxed as per slab rates, just like short-term capital gains. But since India has a double taxation avoidance agreement with certain countries, so suppose you get a dividend from those countries, the companies from those countries, then the company will deduct a certain amount of TDS at a flat rate, which you can claim later on while filing the income tax return, if India has a double taxation avoidance agreement with those countries. Another important regulation is resident Indians need to disclose all the foreign income earned and assets held during the year. During the year means during the financial year, while filing income tax return. This disclosure need to be made even if the stocks has been held for a day. This disclosure need to be made even if the resident would otherwise not be required to file income tax return, because his or her income is less than the basic exemption limit, which is 2,50,000 during the current financial year. I would now invite
Ritesh sir from IndiaINX Global. He will tell us something about how the platform works, how we can open the account over IndiaINX Global access system. Ritesh sir. Okay. For example, 80 से ज़्यादा डिफरेंट पोर्टफोलियो हैं विद डिफरेंट थीम्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. दीज आर द बेसिकली एक्सपर्ट मैनेज पोर्टफोलियोज. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो. अभी अगर इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो में किसी क्लाइंट को इन्वेस्ट करना है तो दीज आर द ऑप्शंस जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल लेट मी चेक दिस टॉप 200. अगर कोई क्लाइंट चाहे तो यूएस की टॉप 200 कंपनीज में इस पोर्टफोलियो के थ्रू एक्सपोजर ले सकता है. एंड ये जो पीएमएस का टर्मिनल है ये ट्रेडिंग टर्मिनल में ही दिया हुआ है. इसका लिंक मैंने आपको बताया, मैं ट्रेडिंग टर्मिनल में लॉगिन करके इसे ओपन किया है और यहाँ आप उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और या होल्डिंग भी चेक कर सकते हैं. तो जैसा कि इस टॉप 200 इंडेक्स बेस्ड पोर्टफोलियो में 8% एप्पल में इन्वेस्ट किया हुआ है, 7% माइक्रोसॉफ्ट, 4% that Amazon, 2% Tesla, and some 5% in Google. So केवल $100 के साथ आप इस मिनिमम अमाउंट इज $100. सिर्फ $100 के साथ इस पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट एन एक्सपोजर ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ टॉप 200 कंपनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. राइट. जैसा मैंने बोला कि 80 से ज़्यादा चॉइस हैं पोर्टफोलियोज की जिसमें क्लाइंट इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो कुछ और पोर्टफोलियो देख लेते हैं जैसे टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी एक थीम है जिसमें अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहे तो दीज आर द ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करना चाहता है ऐसे डिजिटल इनोवेशन. राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या क्या होल्डिंग्स हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइंट कैन चेक द फैक्ट शीट ऑल्सो कि किस कंट्री में कितना पैसा लगाया है इस पीएमएस ने. तो ये फैक्ट शीट ओपन हो गई मेरे पास. नाउ ये फैक्ट शीट से मैं बेसिक डिटेल ले सकता हूँ. फॉर एग्जांपल इस ये जो अपना पोर्टफोलियो है दैट इज ग्लोबल एक्स का डिजिटल इनोवेशन. इस पोर्टफोलियो ने 62% यूनाइटेड स्टेट्स में, 10% चाइना में, 7% जापान में, 3% साउथ कोरिया में, 2% एंड सो ऑन. सो बेसिकली आप एक ट्रूली ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर ले सकते हैं जो इधर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू. इंडिया में जो पीएमएस में अगर क्लाइंट को पैसा डालना होता है तो 50 लाख रुपए का मिनिमम लिमिट होता है. लेकिन यूएस में ऐसा रूल नहीं है और वहाँ आप केवल $100 के साथ अपनी पीएमएस सर्विस शुरू कर सकते हैं. तो ग्लोबली रिनाउंड लीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पोर्टफोलियो इसमें अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल दिस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का पीएमएस, डिजिटल इनोवेशन का दैट ग्लोबल एक्स का पीएमएस, इंटरेक्टिव एडवाइजर का पीएमएस, वेल्थ स्ट्रीट का. सो कॉस्टिंग इज ऑल्सो वेरी लो 0.6%. अगर आप म्यूचुअल फंड के फंड ऑफ फंड में पैसा डालते हैं तो जनरली वो 1.5 से 2% साल का मैनेजमेंट फी लेते हैं और यहाँ आपको 0.6% में ट्रूली ग्लोबल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम इट आई वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग टर्मिनल कि हम लोग किसी भी ओके सो multiple I can search any company. For example this Microsoft. So यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ Microsoft is getting traded on Nasdaq. मैं सिंपली यहाँ से बाय सेल कर सकता हूँ. Microsoft की बेसिक डिटेल मेरे को मेन पेज पर मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल दिस EPS इज $33.6 Microsoft का पर शेयर. एंड मेरे के लिए फंडामेंटल डाटा यहाँ रिसर्च में मिलेगा. मैं टेक्निकल टूल्स मेरे को यहाँ ये पेज, मेरा इंटरनेट थोड़ा आज इशू कर रहा है तो इट्स स्लो बिकॉज आई हैव कनेक्टेड थ्रू माय मोबाइल इंटरनेट. तो यहाँ मैं अपना टेक्निकल रिसर्च परफॉर्म कर सकता हूँ और यहाँ मैं रिसर्च में जाके इस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकता हूँ लाइक ओवरव्यू, कंपनी प्रोफाइल, की रेशो, डिविडेंड, ECG, फाइनेंशियल एनालिस्ट रेटिंग एंड ऑल. तो बेसिक क्या EPS फोरकास्ट है एंड ऑल.
अगर मेरे को खुद से समझ नहीं आता है कि लाइक कंपनी कैसा कर रही है, आई कैन चेक द एनालिस्ट रेटिंग्स। तो रिफिनिटिव का लाइव डाटा है, टिप रैंक रेटिंग्स है टर्मिनल में इटसेल्फ। तो हाँ, फॉर एग्जांपल टिप रैंक रेटिंग के हिसाब से 27 एनालिस्ट ने माइक्रोसॉफ्ट पर रेटिंग दी है पिछले 3 महीने में, और ऑल 27 ने केवल बाय बोला है विद एवरेज टारगेट प्राइस ऑफ 374। तो अभी इसका प्राइस समथिंग और आई कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ इवन इंडिविजुअल एनालिस्ट ऑल्सो। तो अगर मेरे को जो एनालिस्ट है जिन्होंने इस पे बाय कॉल दिया है उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, उनकी एक्यूरेसी चेक करनी है, तो आई कैन चेक फ्रॉम द ट्रेडिंग टर्मिनल इटसेल्फ। सो बेसिकली आई कैन चेक व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, लाइक क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। मैं ऑल 30,000 कंपनी का फंडामेंटल का डाटा, उसका टेक्निकल का डाटा ट्रेडिंग टर्मिनल में एक साथ अवेलेबल है, और मैं उस पर बेसिक रिसर्च कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं एक छोटा सा और अगर डायरेक्ट इक्विटी मेरे को समझ नहीं आता है तो मैं पीएमएस का ऑप्शन मेरे पास है और पोर्टफोलियोज में पैसा डाल सकता हूँ। तो बोथ ऑप्शंस आर देयर। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी समझते हैं तो डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक और फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको $10 का गूगल लेना है, $1 का गूगल लेना है, आप वो भी खरीद सकते हैं, राइट। और जो प्लेटफॉर्म्स है दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। एंड कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग का, कहीं और फंड ट्रांसफर का कहीं कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई फिक्स खर्चा नहीं है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं है, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, कोई एनुअल चार्ज नहीं है, कोई डीपी या कस्टडी चार्ज नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर चार्ज नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई फिक्स खर्चा नहीं है, कोई एनुअल, केवल बाय या सेल पर ब्रोकरेज लगेगा। दैट विल डिपेंड कि आप किस एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। सो वी डिड टाई अप विद बैंक्स ऑल्सो, कि अभी बैंक्स काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हैं ऑन अगर आप फंड रिमिट करने जाते हैं तो दैट्स व्हाई वी डिड टाई अप विद फ्यू बैंक्स। और जो जिन बैंक्स के साथ टाई अप है उनका लिस्ट अपना वेबसाइट पर अवेलेबल है, या आप चेक कर सकते हैं अपना पार्टनर बैंक लिस्ट में। सो ये कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक अभी यूजुअली कोटक ₹1000 चार्ज करता है रेमिटेंस का सभी क्लाइंट से, 500 to 1000 यूजुअली बैंक चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे जो पार्टनर बैंक हैं कोटक और इंडसइंड ₹200 चार्ज करते हैं। इवन आईसीआईसीआई नेम इज ऑल्सो देयर, और आईसीआईसीआई 200 भी नहीं चार्ज करता है। और स्प्रेड भी एचडीएफसी भी इधर आने वाला है। तो फॉर द टाइम बीइंग दिस कोटक, इंडसइंड एंड आईसीआईसीआई इज ऑफरिंग। आईसीआईसीआई के लिए अगर आप रिमिट करने जाते हैं तो आपको वहाँ कूपन कोड डालना होगा INXGA1, तभी वो सब्सिडाइज रेट का बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो इसके अलावा स्टॉक लैंडिंग फैसिलिटी है, अपने पोर्टफोलियो पे आप इनकम अर्न कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि इंटीग्रेटेड टर्मिनल है फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। फंडामेंटल डाटा हम चेक कर सकते हैं, एनालिस्ट रेटिंग हम चेक कर सकते हैं, और मार्केट में क्या हो रहा है हम वो भी देख सकते हैं। ब्लूमबर्ग टीवी का लाइव एक्सेस है, कौन सा मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सा मार्केट नीचे जा रहा है एंड ऑल, कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है, और किस हम लोग वेरियस स्कैनर रन कर सकते हैं। मोर देन 100 स्कैनर्स आर देयर, लाइक टॉप गेनर, टॉप लूजर, और वो कंट्री वाइज, रीजन वाइज या वर्ल्ड वाइड हम लोग ये स्कैनर्स रन कर सकते हैं। तो एक काफ़ी डिटेल्ड टर्मिनल है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है और दुनिया जहान में क्या हो रहा है। इसके अलावा हर क्लाइंट का $5 लाख का इंश्योरेंस है। अगर कुछ भी डिफॉल्ट करता है कोई मार्केट प्लेयर, लाइक कोई ब्रोकर या सब ब्रोकर या मेन ब्रोकर, या तो उसके लिए दैट मार्केट इंटरमीडिएटरी के लिए $5 लाख का दैट इंश्योरेंस इज देयर। तो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था। नाउ आई विल रिक्वेस्ट अभिनव जी टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आज आप पूछ सकते हैं।